Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 6, HTML, images, links and frames. Let's move on to the introduction. So images are used in the web pages to enhance website, to illustrate stories, to display ads, to present products or services, etc. So ये जो images है इन्हें यूज किया जाता है वेब पेज में वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, एनहांस करने के लिए, स्टोरीज को इलस्ट्रेट करने के लिए, एड्स को डिस्प्ले करने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, सर्विसेज को प्रेजेंट करने के लिए. फ्रेम्स allows the user to view multiple documents within a single web page. So ये जो frames हैं ये help करते हैं हम users की किस लिए? बहुत सारे documents को एक साथ देखने के लिए एक ही web page में. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know about, they will understand the importance of images and frames. They will also learn how to create mark. Now let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, have you ever wondered how web pages display images and links to other websites?" So Meera ने Hina से कहा कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि ये जो वेब पेजेस कैसे इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं, लिंक्स को डिस्प्ले करते हैं दूसरे वेबसाइट्स पे? So Hina says, Yeah, I have always been curious about that. हाँ, मैं इसके लिए काफी ज़्यादा curious रही हूँ. How do they do it? ये कैसे किया जाता है? Meera says, well, it's done using HTML, the language that web pages are built with. So ये जो चीज़ें हैं ये HTML की मदद से की जाती है. ये वो language है जिसकी मदद से web pages बनाए जाते हैं. You just need to use the img टैग. तुम्हें सिर्फ img टैग को यूज करना है एंड स्पेसिफाई करना है इमेज के सोर्स को. नाउ Hina says that sounds simple. ये तो काफी ज्यादा सिंपल साउंड होता है. एंड व्हाट अबाउट लिंक्स? लिंक्स के बारे में क्या कहना है? Meera says HTML lets you create links to other web pages using the a tag. HTML आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में लिंक को जो कि आपको दूसरे वेब पेजेस तक ले जाते हैं a tag की मदद से. Now Hina replies that great, but what are frames in HTML? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन frames क्या होते हैं HTML में? Meera replied that frames allow you to split the web page into multiple sections. ये जो frames है ये हमें help करते हैं web page को split करने में, divide करने में, बहुत सारे multiple sections में. Each displaying a different web page, और हर एक सेक्शन एक अलग वेब पेज को डिस्प्ले करता है. Now Hina replied that thanks Meera, HTML seems like a powerful tool for building web pages. ये तो काफी ज्यादा पावरफुल टूल लग रहा है वेब पेज को बनाने का. Now Meera replied that you are welcome Hina. Sure, and there is a lot more to explore as we dive deeper into HTML. So हाँ Hina, तुम सही कह रही हो, you are welcome. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे और आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो तुम्हें HTML के बारे में और डीप नॉलेज मिलेगी. सो इमेजेस प्ले आर इम्पॉर्टेंट रोल इन वेब डिज़ाइन. ये जो इमेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेब डिज़ाइन में एंड कैन वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेबसाइट. और बहुत ही आसानी से इफेक्टिवली ये जो भी हमारे वेबसाइट है उसके एक्सपीरियंस को ये क्या करते हैं? एनहांस करते हैं. 90% of all information that we perceive and that get transmitted to our brains is visually based. 90% जो इंफॉर्मेशन है जो हमें मिलता है वो ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन को. और वो कैसे ट्रांसमिट होता है? विजुअली. मीन्स विजुअल देख के हम जो है किसी इमेज को जब हम देखते हैं तो वो ब्रेन में जल्दी जाती है. Images can help us to attract attention and to guide our visitors' line of sight.
सो ये जो इमेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये हेल्प करते हैं हमारे जो भी लोग हैं जो हमारी साइट को देख रहे हैं या इमेज को देख रहे हैं उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और जो विजिटर लाइन है उन्हें जो है गाइड करने के लिए। In HTML we can insert images and make our web page more attractive. So HTML में हम क्या कर सकते हैं, हम images insert कर सकते हैं और हमारा जो वेब पेज है उसे और ज़्यादा attractive बना सकते हैं। Images are used in the web pages to enhance the website. ये जो images है इन्हें यूज़ किया जाता है वेब पेज में वेबसाइट को enhance करने के लिए, to illustrate stories, stories को illustrate करने के लिए, to display ads, ads को display करने के लिए, to present products, product को present करने के लिए और services को present करने के लिए and many more, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। Now let's move on to inserting image. कैसे हम image को insert कर सकते हैं? So images can be easily inserted at any section in an HTML page. So ये जो images है इन्हें हम कभी भी कहीं भी insert कर सकते हैं अपने HTML पेज में। To insert image in an HTML page, अगर हमें image को insert करना है अपने HTML पेज में, so we use a img tag, हम इस tag को use करते हैं। It is an empty tag, ये एक empty tag है जो कि जिसमें आपको मिलेंगे attributes, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी closing tag नहीं मिलेगा। And closing tag is not required here. We should use the img tag, means image tag inside the body. So हमें ये जो image tag है इसे body के अंदर ही use करना है, body open and body close tag. And the scr attribute in this tag is used to add the image source. So ये जो scr tag है ये image के source के लिए हम use करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, आप इमेज जो है उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे दिया गया है। The alt attribute is used for adding the alternate text. ये जो alt attribute है इसे यूज किया जाता है ऐड करने के लिए एक alternate text को। And here you can see the syntax img, then source हमने यहाँ पे लिखा इमेज का सोर्स, URL, alt and alt के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एंटर किया है। The following example inserts 3 different images on the web page. अब ये जो एग्जाम्पल इसकी मदद से आप 3 अलग अलग इमेजेस को जो है इंसर्ट कर सकते हो वेब पेज पे। पहला आप देखिए, इससे हम काइट की इमेज को डाल सकते हैं, फ्लाइंग काइट्स की। नेक्स्ट से हम स्काई की इमेज को डाल सकते हैं, क्लाउडी स्काई की। फिर जो है नेक्स्ट हम बलून की इमेज डाल सकते हैं एंड यहाँ पे एप्पल भी मेंशन किया गया है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द कोड एग्जाम्पल, कोड हमने लिखा है, इमेज हमने काइट की डाली यहाँ पे फ्लाइंग काइट्स की एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट। आप देख सकते हैं फ्लाइंग काइट्स आपके सामने आ गए हैं। नेक्स्ट, विथ एंड हाइट ऑफ एन इमेज, कैसे हम विथ और हाइट जो अपने इमेज की चेंज कर सकते हैं। सो द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द विथ एंड हाइट ऑफ एन इमेज ऑन वेब पेज। सो ये जो विथ और हाइट है ये एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं विथ और हाइट अपनी इमेज की जो भी है श्योर करने के लिए। The values of these attributes are interpreted in pixels by default. अब ये जो values है इनकी, इन attributes की, वो pixels में होती है। Here you can see the syntax जहाँ पे हमने width और height लिखी है and these are some of the examples जिसमें हमने काइट, फ्लाइंग काइट ली है, width इतनी होनी चाहिए, height इतनी होनी चाहिए। Similarly क्लाउडी स्काई जो है हाइट और width दी गई है एंड बलून्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट और विड्थ दी गई है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे ये जो कोड है ये हमने अपने नोटपैड में लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं फ्लाइंग काइट की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्लाउडी स्काई कितनी हाइट और विड्थ का होना चाहिए एंड सिमिलरली जो बलून्स हैं उनकी जो हाइट और विड्थ है कितनी होनी चाहिए। So this code we have to write down in our notepad and here you can see the result. तीनों images हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं height और width के साथ। Next, alignment of image.
So by default the image will align at the left side of the page. By default अगर हम देखें so हमारा जो image है वो left की तरफ align होगा. But we can use align attribute to set it in the center or right. लेकिन हम align attribute को use कर सकते हैं उसे जो है center या फिर right में align करने के लिए. So यहाँ पे आप देख सकते हैं alignment हमने डाल रखा है. This is our syntax. So align हमें जो है ऐसे करना है टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट. सो टॉप अलाइनमेंट से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट हमारा ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएगा. मिडिल अलाइनमेंट से टेक्स्ट जो है बीच में अलाइन हो जाएगा और बॉटम अलाइनमेंट से जो है टेक्स्ट नीचे की तरफ अलाइन हो जाएगा. सिमिलरली लेफ्ट और राइट यहाँ पे दिए गए हैं. लेफ्ट की मदद से जो इमेज है वो लेफ्ट की तरफ फ्लोट होने लगेगी और जो टेक्स्ट है यहाँ पे अलाइन, द टेक्स्ट इज अलाइन टू द राइट ऑफ द इमेज. और जो भी टेक्स्ट है वो इमेज के आपको राइट साइड में दिखेगा. सिमिलरली जब हम राइट की बात करते हैं तो जो इमेज है वो राइट की तरफ फ्लोट होने लगेगा और जहाँ टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा लेफ्ट की तरफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोड एग्जाम्पल. सो यहाँ पे कोड एग्जाम्पल दिया गया है अलाइन टू द टॉप. टॉप की तरफ अलाइनमेंट हो रही है यहाँ पे. सो आप देख सकते हैं हियर वी हैव रिटन द टाइटल एंड यहाँ पे हमने अलाइन टॉप यूज किया है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है इमेज जो है आपकी जो है द टेक्स्ट अलाइंस टू द टॉप ऑफ द इमेज. नाउ अब मिडिल की बात करें, यहाँ पे अलाइनमेंट जो है मिडिल की तरफ जा रहा है. सो आप देख सकते हैं दिस इज द कोड दैट वी हैव रिटन हियर. यहाँ पे आपने अलाइन मिडिल डाला है एंड आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है ये मिडिल की तरफ अलाइन है. नाउ सिमिलरली बॉटम अलाइन की अगर हम बात करें, सो दिस इज द कोड दैट वी हैव टू राइट डाउन एंड यहाँ पे हमने अलाइन बॉटम चूज किया है. सो आफ्टर दिस वी कैन सी द टेक्स्ट इज एट द बॉटम ऑफ द इमेज. सो फर्स्ट में हमारा टॉप अलाइनमेंट था, फिर मिडिल अलाइनमेंट और फिर अब बॉटम अलाइनमेंट आ गया है. नाउ अलाइन टू द लेफ्ट. अब लेफ्ट की तरफ अलाइन करना हमें. सो हमने ये जो सिंटेक्स है ये पूरा लिखा है, ये पूरे कमांड्स लिखे हैं और यहाँ पे हमने अलाइन लेफ्ट लिखा है. सो अब जो इमेज है वो फ्लोट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ. अब आप देख सकते हैं सारी चीजें लेफ्ट से शुरू हो रही हैं. सारा जो भी कंटेंट लिखा है वो लेफ्ट से शुरू हो रहा है. नाउ सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अलाइन टू द राइट की, तो ये जो सारा है कोड्स, इन कोड्स को हमें लिखना है अपने नोटपैड में एंड आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो उधर चली गई है एंड सारा जो इमेज है वो इस तरफ आ चुका है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द बॉर्डर ऑफ इमेज. बॉर्डर ऑफ इमेज क्या है? सो बाय डिफॉल्ट इमेज विल हैव अ बॉर्डर अराउंड इट. सो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा इमेज है उसके पास, उसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर मिलेगा. वी कैन स्पेसिफाई बॉर्डर थिकनेस इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स यूजिंग बॉर्डर एट्रीब्यूट. हम जो है हमारा जो है बॉर्डर थिकनेस है उसे जो स्पेसिफाई कर सकते हैं किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स. पिक्सल्स के टर्म में हम इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट की मदद से. अ थिकनेस ऑफ 0 मींस नो बॉर्डर. अगर थिकनेस 0 है इसका मतलब बॉर्डर नहीं है अराउंड द पिक्चर, पिक्चर के चारों तरफ. तो आप देख सकते हैं दिस इज अ सिंटेक्स जहाँ पे हमने बॉर्डर के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट हमारा ये है, वैल्यू पिक्सल्स में होगी एंड ये जो है हमारा जो भी साइज है बॉर्डर का वो शो करेगा. नाउ हियर यू कैन सी द कोड एग्जांपल इज गिवन, जहाँ पे हमने जो है फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिफॉल्ट रखा है. नाउ सेकेंड में हमने बॉर्डर 2 कर दिया है और थर्ड एग्जांपल में हमने बॉर्डर को 6 कर दिया है. नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं बना हुआ है. सेकेंड पिक्चर में जहाँ बॉर्डर 2 है वहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मोटा बॉर्डर दिख रहा है हमें एंड जहाँ पे बॉर्डर 6 है वहाँ पे जो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ गई है. सो ऐसे ही बॉर्डर वर्क करता है. Now let's move on to let's summarize. Which HTML element is used to define the structure of an HTML document? कौन सा HTML element है जिसे यूज किया था डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर हमारे HTML डॉक्यूमेंट का? And encloses all the other HTML elements. और इसके अंदर आपको सारे HTML elements मिलेंगे. Now second,
कैन वी डिस्क्राइब द रोल ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स? क्या हम जो हमारा HTML एट्रीब्यूट्स है उसके रोल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि src है या alt है इन द इमेज के कॉन्टेक्स्ट में. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग मार्क. कैसे हम मार्क को क्रिएट कर सकते हैं? So in HTML mark tag is a scrolling piece of text. HTML की अगर हम बात करें तो ये जो mark tag है ये एक scrolling piece है text का, which is displayed either horizontally across or vertically down the web page depending on the settings. So जैसी setting है उसके according ये horizontally और vertically हमें अपने web page पे दिखाई देगा. We can create them using HTML mark tag और इसे हम create कर सकते हैं HTML mark tag की मदद से. So, आप देख सकते हैं जो सिंटेक्स है एक सिंपल सिंटेक्स दिया गया है हमारे HTML मार्क टैग का एंड दिस इज द सिंटेक्स. नाउ वन और मोर लाइन्स और टेक्स्ट, मैसेज और इमेज. सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैग क्लोज हो रहा है. सो ये है हमारा कोड एग्जाम्पल जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मार्क टैग को यूज किया हुआ है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट. This is basic example of mark. Now, this text will be scrolling from right to left during the output. Output के दौरान क्या होगा? ये जो text है ये scroll करता जाएगा right से left की तरफ. Now, let's learn about the mark tag attributes. कौन-कौन से attributes है यहाँ पे? So, the following is a list of important attributes. ये कुछ list of attributes दिए गए हैं which can be used with mark tag, जिन्हें हम mark tag के साथ यूज कर सकते हैं. So पहला है आप देख सकते हैं width. ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है width जो है हमारे मार्क का एंड इसकी जो वैल्यू है ये 20 से 30% तक या फिर और भी कुछ हो सकती है. नेक्स्ट आता है हाइट. ये हाइट को स्पेसिफाई करता है हमारे मार्क का एंड इसकी जो वैल्यू है सेम 20 से 30% तक है या और कुछ. नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्शन की. ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन इन विच मार्क शुड स्क्रॉल. ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मार्क को जाना चाहिए. ये कोई वैल्यू हो सकता है जैसे कि अप, डाउन, लेफ्ट या फिर राइट. नेक्स्ट बात करते हैं हम बिहेवियर की. बिहेवियर एट्रीब्यूट की ये स्पेसिफाई करता है कि द टाइप ऑफ स्क्रॉलिंग ऑफ द मार्क मीन्स किस तरीके की स्क्रॉलिंग होगी मार्क पे एंड दिस कैन हैव अ वैल्यू. यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू मिलेगी जैसे कि स्क्रॉल, स्लाइड और ऑल्टरनेट. नेक्स्ट है स्क्रॉल डिले. ये स्पेसिफाई करता है हाउ लॉन्ग टू डिले बिटवीन ईच जंप. कितना लॉन्ग जो है हमें डिले करना है जंप को एंड दिस विल हैव अ वैल्यू लाइक 20. यहाँ पे जो वैल्यू है आपको 20 मिलेगी. फिर आता है स्क्रॉल अमाउंट. ये स्पेसिफाई करता है जो भी स्पीड है हमारे मार्क टेक्स्ट की एंड इट कैन ऑल्सो बी अ वैल्यू लाइक 10 एक्सेट्रा. यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. फिर बारी आती है लूप की. ये स्पेसिफाई करता है हाउ मेनी टाइम्स टू लूप, कितनी बार लूप लेना है. जो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इनफाइनाइट है जिसका मतलब है कि जो मार्क लूप है ये एंडलेसली काम कर रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा बीजी कलर जो कि स्पेसिफाई करता है बैकग्राउंड कलर को. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कलर नेम और कलर हेक्स वैल्यू. फिर आता है एड स्पेस. ये स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल स्पेस जो कि हमारे मार्क के आसपास है एंड इसकी जो वैल्यू है वो 10 से 20% तक हो सकती है या और भी ज़्यादा कुछ हो सकती है. फिर आता है वी स्पेस जो स्पेसिफाई करता है वर्टिकल स्पेस को हमारे मार्क के आसपास एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो लाइक 10 to 20% या फिर कुछ और. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड दिया गया है. दिस कोड वी हैव टू रन जिसमें हमने मार्क एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% विड्थ ली गई है मार्क की एंड हियर दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट. सो ये आउटपुट हमें मिलेगा और क्या है आउटपुट? दिस एग्जाम्पल विल टेक ओनली 50%. सो ये हमारा आउटपुट है.
नाउ दिस टेक्स्ट अपीयर्स फ्रॉम द सेंटर, ये जो टेक्स्ट है वो बीच से आएगा, 50% ऑफ द स्क्रीन एंड स्क्रॉल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द आउटपुट। सो ये जो है टेक्स्ट जो है सेंटर से आएगा, 50% जो हमारा स्क्रीन है वहां से आएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लिंकिंग वेब पेजेस, कैसे हम वेब पेजेस को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। सो a link or hyperlink is a connection that we create from one web resource to another. So ये जो लिंक की बात कर रहे हैं या जो हाइपरलिंक की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है एक से ज्यादा वेब पेजेस को, रिसोर्सेस को। लिंक्स बेसिकली अलाउ यूजर्स टू मूव सीमलेसली। लिंक जो है हमें हेल्प करते हैं मूव करने में काफी अच्छे से एक पेज से दूसरे तक, ऑन एनी सर्वर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी सर्वर पे दुनिया में कहीं भी। तो लिंक की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं। नाउ बाय डिफॉल्ट लिंक्स will appear as follows in most of the browsers. अगर हम by default देखें तो ये जो links हैं ये ज़्यादातर ब्राउज़र में ऐसे दिखाई देते हैं। पहला, an unvisited link is underlined and blue. So जो भी unvisited link है वो underline दिखाई देगा, blue दिखाई देगा। A visited link is underlined and purple. अब जो भी visited link है जहाँ पे हम जा चुके हैं वो अंडरलाइन दिखेगा और पर्पल दिखाई देगा। नेक्स्ट, एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, और जो एक्टिव लिंक है वो अंडरलाइन दिखेगा और रेड दिखाई देगा। नेक्स्ट, HTML लिंक सिंटैक्स। HTML लिंक के क्या क्या सिंटैक्स हैं? सो लिंक्स आर स्पेसिफाइड इन HTML। ये जो लिंक्स हैं इन्हें स्पेसिफाई किया जाता है HTML में ए टैग की मदद से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंकर टैग, इसे जो है एंकर टैग भी कहते हैं। ये जो लिंक है या जो हाइपर लिंक है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक अ वर्ड, ये कोई वर्ड हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई इमेज भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंटैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंटैक्स लिखा हुआ है आपके सामने। सो एनीथिंग बिटवीन द ओपन ए टैग एंड द क्लोजिंग ए टैग, कोई भी चीज जो इन टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में है, becomes a part of the link, वो उस लिंक का पार्ट बन जाता है। That the user will see and click in the browser, जिसे यूजर देख सकता है और उस पर क्लिक कर सकता है ब्राउजर में। Here are some of the examples of the links. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लिंक्स के, तो आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने जो है एक जो है लिंक डाल रखी है इमेजेस की, नाउ google.com, ये सारे लिंक्स हमने डाल रखी हैं। एंड आप देख सकते हो कि गूगल सर्च, इंडिया टुडे, ये सारी जो है अनविजिटेड लिंक जो है ब्लू कलर से दिख रहे हैं। सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो व्हिच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट? कौन से HTML टैग को यूज करते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, इमेजेस को क्रिएट करने के लिए वेब पेज पे? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉलिंग? कौन सा है डिफॉल्ट डायरेक्शन स्क्रॉलिंग का? इफ द डायरेक्शन एट्रीब्यूट इज नॉट एडेड इन द मार्क टैग, अगर जो है हमारा डायरेक्शन जो है एट्रीब्यूट वो नहीं है मार्क टैग में, तो सो दीज टू यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रेम्स। Frames allows the user to view multiple documents. ये जो frames हैं हमें help करते हैं बहुत सारे documents को view करने में within one single web page, एक ही web page के अंदर। HTML frames are used to divide the browser window into multiple sections. So ये जो HTML frames हैं इन्हें use किया जाता है divide करने के लिए browser window को अलग-अलग sectors में, अलग-अलग sections में, where each section can load a separate HTML document, जहाँ पे हर एक section जो है क्या कर सकता है, एक separate HTML document को load कर सकता है। Now collection of frames in the browser window is known as a frame set. So frame set क्या है? ये collection है frames का किसी भी browser के window में। The window is divided into frames. ये जो window है इन्हें frames में divide किया जाता है in a similar way as the tables are organized, which
to rows and columns. Now let's learn about creating frames. कैसे हम frames को create कर सकते हैं. So to use frames on a page, अगर आपको frames को use करना है पेज पे, we use frame set tag. हम frame set tag को use करते हैं instead of body tag. Body tag की जगह पे. The frame set tag explains how to divide the window into frames. अब ये जो टैग है ये बताता है कि विंडो को कैसे हमें फ्रेम्स में डिवाइड करना है. The row attribute of frame set tag defines horizontal frames and column attribute defines vertical frames. ये जो रो एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेम सेट टैग के वो जो है हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स को डिफाइन करते हैं और ये जो कॉलम एट्रीब्यूट्स हैं ये वर्टिकल फ्रेम्स को डिफाइन करते हैं. Each frame is indicated by frame tag. जितने भी फ्रेम हैं उन सब में आपको फ्रेम टैग मिलेगा and it defines which HTML document will open into which frame. ये बताता है कि कौन से HTML डॉक्यूमेंट को जो हम यूज करेंगे कौन सा HTML डॉक्यूमेंट ओपन होगा किस फ्रेम में. Now here you can see the code example. The following is example to create 3 horizontal frames using frame set. Frame set की मदद से हम यहाँ पे 3 horizontal frames बना रहे हैं. तो आप देख सकते हैं फ्रेम सेट रो को यहाँ पे सेट कर दिया गया है 10%, 80% and 10% again. Similarly फ्रेम सेट के जो नेम है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है. ना फ्रेम सेट नेम में आप देख सकते हैं टॉप फ्रेम, मेन फ्रेम और बॉटम फ्रेम आ रहा है. एंड this message you can see it's written in the body. Your browser does not support frames and ये आप देख सकते हैं ये है आपका आउटपुट जहाँ पे 100%, 80% और 10% को यूज किया जा रहा है. Now let's move on to frame set tag attributes. So these are some important attributes of the frame set tag. कुछ important attributes दिए गए हैं. पहला attribute है COLS. So ये जो है स्पेसिफाई करता है कितने कॉलम्स होने चाहिए फ्रेम सेट में एंड क्या साइज होना चाहिए हर एक कॉलम का. हम यहाँ पे जो भी विड्थ है हमारे कॉलम की वो स्पेसिफाई कर सकते हैं 4 तरीकों से. पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि पिक्सल्स में होती है एंड इसे क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं टू क्रिएट 3 वर्टिकल फ्रेम्स आपको ये यूज करना होगा कोड. नाउ सेकेंड है परसेंटेज ऑफ द ब्राउजर विंडो. क्या परसेंटेज है ब्राउजर विंडो की. सो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 वर्टिकल फ्रेम्स को यूज करेंगे एंड दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. नाउ थर्ड वन यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड सिंबल. अब हम वाइल्ड कार्ड सिंबल को यूज कर रहे हैं एंड इसके लिए हम 3 वर्टिकल फ्रेम्स को क्रिएट करेंगे इन वैल्यूज को यूज करके. इन दिस केस वाइल्ड कार्ड टेक्स रिमेनिंग ऑफ द विंडो. इस केस में क्या होगा जो वाइल्ड कार्ड है वो बाकी बचा हुआ जो विंडो से ले लेगा. फोर्थ अगर हम बात करें सो ये है एज रिलेटिव विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो. जो भी रिलेटिव विड्थ होगा हमारे ब्राउजर विंडो का उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वर्टिकल फ्रेम्स के. सो ये वैल्यूज हमें डालनी है. दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू परसेंटेज. ये क्या है ये एक ऑल्टरनेटिव है परसेंटेज का एंड वी कैन यूज रिलेटिव विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो. और यहाँ पे हम जो हमारा रिलेटिव विड्थ है ब्राउजर विंडो का उसे जो है यूज कर सकते हैं. इन दिस द विंडो इज डिवाइडेड इनटू 6. यहाँ जो विड्थ है विंडो की उसे जो है डिवाइड कर सकते हैं 6 पार्ट्स में. द फर्स्ट कॉलम टेक्स आप हाफ ऑफ द विंडो. जो पहला कॉलम है वो विंडो का हाफ पार्ट ले लेगा. सेकेंड जो है लेगा 1/3 पार्ट और जो थर्ड है वो लेगा 1/6 पार्ट. नेक्स्ट कम्स रोज. ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट है. ये जो एट्रीब्यूट है इसे यूज किया जाता है उसी तरीके से जैसे हम COL मीन्स कॉलम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं एंड टेक्स द सेम वैल्यूज. ये भी उन सेम वैल्यूज को लेता है बट इट इज यूज टू स्पेसिफाई द रोज इन द फ्रेम सेट. लेकिन जो है इसे यूज किया जाता है जो भी हमारे रोज होते हैं फ्रेम सेट में उसे स्पेसिफाई करने के लिए. अब एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है टू क्रिएट 2 horizontal frames use rows 10%, 90%. सो हमें 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स को क्रिएट करना है और उसके लिए हमने 10% और 90% को यूज किया है.
वी कैन स्पेसिफाई द हाइट ऑफ ईच रो इन द सेम वे, और यहाँ पे जो हाइट है वो भी हम सेम तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, एज एक्सप्लेन्ड अबव फॉर कॉलम्स, जैसा कि ऊपर स्पेसिफाई किया जा रहा है कॉलम्स में. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज border. So this attribute specifies the width of the border of each frame in pixels. ये जो एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है जो भी विड्थ है हमारे बॉर्डर का हर एक फ्रेम में पिक्सल्स फॉर्म में. अब जो यहाँ पे एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, बॉर्डर यहाँ पे 6 है, जो वैल्यू है 0 की वो नो बॉर्डर है. नाउ नेक्स्ट कम्स फ्रेम बॉर्डर. ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल बॉर्डर है वो ये है या नहीं है, एंड उसे जो है यहाँ पे डिस्प्ले करना है फ्रेम्स के बीच में. ये जो एट्रीब्यूट है ये जो है जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे या तो 1 येस के फॉर्म में लेता है या फिर 0 नो के फॉर्म में लेता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रेम बॉर्डर हमने यहाँ पे 0 लिखा है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, और अगर हमने 1 लिखा है इसका मतलब यहाँ पे बॉर्डर है. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फ्रेम स्पेसिंग. सो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें बताता है, स्पेसिफाई करता है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द फ्रेम्स, कितना स्पेस होना चाहिए फ्रेम्स के बीच में इन अ फ्रेम सेट में. दिस कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू. ये जो है किसी भी इंटीजर वैल्यू के ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रेम स्पेसिंग की तो यहाँ पे उसे 10 लिया गया है, मीन्स देयर शुड बी 10 पिक्सल्स स्पेसिंग. यहाँ पे जो है 10 पिक्सल्स स्पेसिंग होना चाहिए बिटवीन ईच फ्रेम एंड एवरी फ्रेम, हर एक फ्रेम के बीच में. सो हियर यू कैन सी द कोड एग्जांपल दैट वी हैव रिटन, एंड आप देख सकते हैं फ्रेम्स ने कैसे डिवाइड किया. ये जो है पूरी विंडो को 25%, ये जो विंडो है इसे 50%, और ये वाला जो विंडो है इसे 25% 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. सो ये जो कोड है ये हमें अपने नोटपैड में लिखना है, एंड दिस इज द रिजल्ट that we are going to get. Now the next comes the frame tag attributes. क्या है frame tag attributes? So यहाँ पे आप देख सकते हैं the following are some of the important attributes of frame tag. यहाँ पे कुछ attributes दिए गए हैं frame tag के. So चलिए देखते हैं क्या क्या है. पहला है src attribute जो कि स्पेसिफाई करता है जो भी URL है हमारे पेज का उसको या फिर फाइल का, that should appear inside the frame, जो फ्रेम के अंदर होना चाहिए. Without it the frame stays blank. इसके बिना जो है हमारा फ्रेम है वो ब्लैंक दिखेगा. सो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है SRC को यूज करने का. नेक्स्ट है नेम. ये जो है क्या करता है, असाइन करता है एक नेम हमारे फ्रेम को. सो लिंक्स कैन टारगेट इट, ताकि लिंक्स इसे टारगेट कर सके. यूजफुल When opening new pages, ये जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जब हम नए पेजेस को जो है ओपन करते हैं inside a specific frame, एक specific frame के अंदर. And here you can see this is the example of this. Next comes scrolling. Control whether scroll bars should appear. ये वो कंट्रोल एरिया जहाँ पे स्क्रॉल बार होने चाहिए. वैल्यूज यहाँ पे yes, no या फिर ऑटो होते हैं. नाउ आप ये देख सकते हैं ये है हमारा एग्जाम्पल. फिर आता है नो रिसाइज. ये क्या करता है, यूजर्स को प्रिवेंट करता है जो हमारा फ्रेम है उसे रिसाइज करने से बाय ड्रैगिंग इट्स बॉर्डर. सो यहाँ पे हम बॉर्डर को ड्रैग करके फ्रेम को रिसाइज नहीं कर सकते. एंड हियर इज द एग्जाम्पल फॉर दिस. नेक्स्ट कम्स फ्रेम बॉर्डर. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो भी विजिबिलिटी है हमारे बॉर्डर का 2 फ्रेम्स के बीच में उसे जो है कंट्रोल करता है. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम बॉर्डर है 1 जो है जो दिखा रहा है बॉर्डर को, एंड जब हमने यहाँ पे 0 लिखा इसका मतलब ये बॉर्डर को छुपा ले रहा है. एंड हियर दिस इज योर एग्जांपल. नेक्स्ट कम्स मार्जिन विड्थ. सो ये क्या बताता है, ये बताता है जो भी हॉरिजॉन्टल स्पेस है पिक्सल्स में, कितना पिक्सल्स में स्पेस है बिटवीन कंटेंट्स एंड फ्रेम, कंटेंट और फ्रेम के बीच में जो कि लेफ्ट राइट एज पे है. नाउ हियर इज एग्जांपल फॉर दिस. नेक्स्ट कम्स मार्जिन हाइट. सो ये क्या करता है, ये जो है वर्टिकल स्पेस के बारे में बताता है वो भी पिक्सल्स में.
जो भी हो हमारे कंटेंट और फ्रेम के बीच में, चाहे वो टॉप और बॉटम में हो. एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज लॉन्ग डेस्क. सो ये क्या करता है, ये इट लिंक्स टू अ सेपरेट पेज विथ अ लॉन्गर डिस्क्रिप्शन. ये हमें एक नए पेज तक ले जाता है लंबे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑफ द फ्रेम कंटेंट, जो भी फ्रेम का जो भी कंटेंट है उसके साथ. फॉर कॉम्प्लेक्स विजुअल्स लाइक चार्ट्स और मैप्स, जिसमें जो है कॉम्प्लेक्स विजुअल्स को यूज किया जा रहा है जो कि चार्ट्स या फिर मैप्स हो सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी दिस इज आवर एग्जाम्पल. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रीबूट. So here the first point is IMG means image tag is used to insert image in an HTML page. HTML supports PNG, JPEG and GIF image file extension. So file extension जो है हम इनके साथ हम end कर सकते हैं. Next, attributes of IMG tag means image tag are src, alt, width, height, border, etc. Next, mark you basically is a scrolling piece. ये एक scrolling piece है किसका, of text displayed either horizontally across or vertically in downward direction. Next comes frames are used to divide our browser window into multiple sections. ये जो frames हैं ये यूज किए जाते हैं डिवाइड करने के लिए हमारे ब्राउजर विंडो को अलग अलग सेक्शंस में, where each section can load a separate HTML डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हर एक सेक्शन जो है एक जो है सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, लोड कर सकता है. नेक्स्ट, फ्रेम टैग. फ्रेम टैग इज यूज फॉर फ्रेम्स, इसे यूज किया जाता है फ्रेम्स के लिए. नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट. ये जो है जो कलेक्शन है फ्रेम्स का ब्राउजर विंडो में उसे हम फ्रेम सेट कहते हैं. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's go. So A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. First, a hyperlink or link is a connection from one web service to another. Second, the frame set tag defines how we divide the window into frames. Third, we can insert an image in our web page by using image tag. Fourth one, HTML frames are used to divide our browser window into multiple sections. Fifth, we can specify width and height of the image in terms of pixels. And the sixth one is mark is a scrolling piece of text displayed either horizontally across or vertically down our web page depending on the settings. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So here the first one is a visited link is underlined and red. This is false. Second, by default image will not have any border around it. This is again false. Third, the width of mark can be specified with width attribute. This is true. Fourth one, we can set image width and height based on our requirement using width and height attributes. This is true. Fifth one, the calls attribute of frame set tag defines horizontal frames and row attribute defines vertical frames. This is again true. And the sixth one is frame tag is used for forms. This is false. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is this specifies the type of scrolling of the mark. Length, direction, width, height. Here the correct answer is direction. Second, dash are used to divide the browser window into multiple sections. Links, mark, frames, forms. Correct answer is frames. Third,
and active link is underline and purple, pink, green, blue. So here the correct answer is blue. Fourth one, we can insert any image in our web page by using this tag, image tag, mark tag, link tag or a tag. Here the correct answer is image tag. Now let's move on to the next question. Now question number 5. This specifies horizontal space around the mark. Scroll delay, loop, scroll amount, edge space. Here the correct answer is edge space. 6. It is an attribute of frame tag. Frame border, height, alt, none of them. So here the correct answer is frame border. Now let's move on to match the following. Here you can see there are two columns, column A and B. We have to match them. So here first one, pixels. Used to set width and height of image. Mark is used for scrolling piece of text displayed either horizontally, vertically down on web page. V space specifies vertical space around the mark. Frame set explains how to divide the window into frames. Links allow user to move from one page to another. And alt is used on image tag attribute. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed our chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.